عوامی تحفظ کے معاملے پر غیر ذمہ دارانہ سیاست، پی ڈی ایم اراکین سخت لاک ڈاؤن چاہتے تھے اور تنقید کرتے تھے، اب یہ لوگ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اپوزیشن ایسے وقت جلسے کرنے پر بضد ہے جب کورونا پھیل رہا ہے، وزیر اعظم کا ٹویٹ۔ نون لیگ کی حکومت نے آزاد کشمیر پیپلز پارٹی نے کراچی میں لاک ڈاؤن کیا، دونوں جماعتوں کا پھر بھی اصرار ہے پشاور جلسہ ضرور ہوگا، دوغلے پن کی اس سے واضح مثال نہیں مل سکتی، اسد عمر کی تنقید۔ بختاور کی منگنی پر کورونا ٹیسٹ لازم ورنہ بلاول ہاؤس نہیں آنا، خلق خدا کو جلسوں میں بلاتے ہو تو ان کی جانوں کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ یہ ہے وہ فرعونیت اور ظالمانہ سوچ جو عوام کو کم تر سمجھتے ہیں، شہباز گل کا ٹویٹ۔ ایک کورونا میں 2% موت کا خطرہ ہے اور دوسرا حکومتی کورونا جو ہے اس میں 100% موت کا خطرہ ہے اور مکمل تباہی کا خطرہ ہے۔ یہ کورونا حکومت ہے، یہ پوری حکومت ہی جانی چاہیے۔ پی ڈی ایم جو ہے یہ حکومت کے خلاف تحریک چلا رہی ہے، حکومت کے خلاف تحریک ہم نے حکومت سے زیادہ دینے کو تو نہیں چلا رہی۔ حکومتی کورونا سے 100% موت کا خطرہ، نجات ناگزیر۔ وفاق اور پنجاب میں چھوٹے بڑے کورونا جن کا جانا ٹھہر گیا، حکومت کے خلاف پی ڈی ایم تحریک اجازت لے کر نہیں چلائی جا سکتی، رانا ثناء اللہ۔ پشاور میں جلسہ شیڈیول کے مطابق کل ہوگا، پی ڈی ایم قیادت ڈٹ گئی، کورونا کی حفاظتی تدابیر پر مکمل عمل کیا جائے گا، سلیکٹڈ ٹولے کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے، شاہد خاقان عباسی۔ کورونا پھر بے قابو، مزید 42 افراد جان سے گئے، اب تک 7603 اموات، 2834 نئے مریض بھی سامنے آ گئے، ملک بھر میں 3,71,508 شہری متاثر، ایکٹیو کیسز کی تعداد 34,974 تک پہنچ گئی۔ کورونا کی دوسری لہر بکھرنے لگی، کراچی میں کیسز بڑھنے سے صورتحال خراب، شہر قائد کے تمام اضلاع میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ، 2 ڈسٹرکٹس میں مائکرو لاک ڈاؤن ہوگا، نوٹیفیکیشن آج جاری ہونے کا امکان۔ سندھ میں اسکول اور کالج کھلے رہیں گے یا بند ہوں گے؟ محکمہ تعلیم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس، صوبے کی درسگاہوں میں مہلک وائرس کی صورتحال پر غور۔ کورونا وائرس کی دوسری لہر، خیبر پختونخوا میں 38 سرکاری اسکول بند، ایس او پیز کی خلاف ورزی پر پشاور انتظامیہ کا ایکشن، 36 دکانیں، 7 مارکیٹیں اور 11 ہوٹل سیل، مجموعی طور پر 68,000 سے زائد جرمانے۔ تحریک لبیک کے سربراہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ کی تیاریاں، غم سے نڈھال عقیدت مندوں کی بڑی تعداد مینار پاکستان گراؤنڈ پہنچ گئی، اسکیم موڑ سے آزادی پل تک کارکنوں کی قافلے کی صورت میں آمد۔ ہوٹل چھاپا اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری قانون سے ماورا قرار، مقدمے میں اختیارات سے تجاوز کیا گیا، سندھ کے 5 وزراء پر مشتمل کمیٹی نے رپورٹ فائنل کر لی، پس پردہ اسباب اور پی ٹی آئی رہنماؤں کے کردار کا بھی ذکر۔ کلفٹن میں سرکاری زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا ریفرنس، کراچی کی احتساب عدالت نے مصطفیٰ کمال، لالا فضل الرحمان، افتخار قائم خانی سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی، تمام ملزمان کا صحت جرم سے انکار، سماعت 5 دسمبر تک ملتوی۔ کشمور سے کراچی تک تباہی کی ذمہ دار پیپلز پارٹی کی حکومت، بلاول کو پی ڈی ایم پلیٹ فارم سے انقلاب کی باتیں زیب نہیں دیتی، مصطفیٰ کمال کی تنقید، وزیر اعظم کی الیکٹورل اصلاحات کا خیر مقدم، سندھ اور خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن کا مطالبہ۔ کے سی آر سمیت کراچی کے 4 وفاقی منصوبوں میں پیش رفت، سندھ حکومت پروجیکٹ کے لیے رکھے گئے 700 ارب کیوں خرچ نہیں کرتی؟
अगले साल तक ग्रीन लाइन का भी इफ्तिताह होगा। शहरी कायद के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। असद उमर और गवर्नर इमरान इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेलवे जमीन पर गैर कानूनी तामीरात का इल्जाम। कराची में MQM रहनुमा कामरान तेसूरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सरकारी अराजी पर कब्जे की दफात शामिल। 2000 गज से जायद जमीन रेलवे की है। FIR। पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल मजीद बेहतर बनाने का अज़्म। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस और बलोच लेविस में भर्तियों की मंजूरी दे दी। भर्तियां 100% मेरिट पर होंगी। लॉ एंड ऑर्डर के लिए हर जरूरी इक़दाम उठा रहे हैं उस्मान बुज़दार। खैबर पख्तूनख्वा में शहरियों को सस्ती चीनी ना मिल सकी। लोग यूटिलिटी स्टोर्स और सस्ते बाजारों से मायूस लौटने लगे। हुकूमत बड़े बड़े दावे छोड़कर रिलीफ के लिए अमली इक़दाम करे। आवाम का पारा हाई। फैसलाबाद में गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड्स की भरमार। इंतजामिया खामोश। मेन शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। लोगों के लिए पैदल चलना भी दुश्वार। शहरियों का मुश्किलात के अजाले के लिए अमली इक़दाम उठाने का मुतालबा। गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड है जिसकी वजह से बाज़ार में कस्टमर का आना भी इतना मुश्किल हो गया है। लेडीज़ को पार्किंग नहीं मिलती, किसी जगह पर गाड़ी नहीं लगा सकते। रिक्शे वालों ने तंग कर दिया है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं किसी सिटी में भी चलता। आप देखें ये जितने भी यहाँ पे बाज़ार हैं बिल्कुल सब जो रिक्शा की वजह से बहुत मुतासर है। बुलेटिन के आगाज में जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान का, जिन्होंने अपोजिशन पर कड़ी तनकीद करते हुए ट्वीट किया है कि PDM अरकान सख्त लॉकडाउन चाहते थे, अब ये लोग खुद अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने ट्वीट करते हुए कहा कि अपोजिशन ऐसे वक्त जलसे करने पर बज़िद है जब कोरोना फैल रहा है। चूंकि कोरोना की दूसरी लहर फैलने का खदशा है, हुकूमत ने यह अनाउंस किया था कि जलसे जुलूसों पर पाबंदी होगी, जलसे नहीं किए जाएंगे। तो ऐसे में अपोजिशन बज़िद है कि जो PDM के तहत जलसे होंगे वो वही उसी तरह होंगे जिस तरह से प्लान किए गए हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन पर कड़ी तनकीद की है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि PDM अरकान सख्त लॉकडाउन चाहते थे, अब ये लोग खुद ही अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि अपोजिशन ऐसे वक्त में जलसे करने पर बज़िद है जब कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि पेशावर में PDM का जलसा जरूर होगा, हुकूमत से इजाजत की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को सिर्फ आगाह किया, हुकूमती कोरोना से मौत का 100% खतरा है, इसको जाना होगा। कल इंशाअल्लाह ताला जो है वो 22 नवंबर का पेशावर में PDM का जलसा हर हाल में होगा और इंशाअल्लाह ताला आवाम आके इस हुकूमत के ख़िलाफ़ और अपोजिशन के साथ अज़हार यकजहती करेंगे। PDM जो है ये हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चला रही है। हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक हमने हुकूमत से इजाज़त लेने को तो नहीं चला दी, हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया है। हम उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जी 22 तारीख को पेशावर में फलां जगह पे जलसा होने जा रहा है। ये सिर्फ हम इतला दे रहे हैं, बाकी इसमें हमें कोई हुकूमत की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, हुकूमती कोरोना जो है इसमें 100% मौत का ख़तरा है और मुकम्मल तबाही का ख़तरा है। इसलिए 2% वाले कोरोना का रिस्क लें और ये 100% मौत का ख़तरा है जिस कोरोना से, हुकूमती कोरोना से, इसके खिलाफ जो है वो पूरी कौम बाहर निकले। इस वक्त लाहौर में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार क़िरात मुकाबले में इनामात तकसीम करने की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। वसल्लम की सीरत और तालीमात पर तहकीक करने के लिए दुनिया के सामने नए पहलू रोशनास कराने का मौका मिलेगा। मैं यह जिक्र भी करना ज़रूरी समझता हूँ कि रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप देने के लिए 25 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं और नादार तलबा की तालीमी मावनत के लिए भी 25 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और मैं आखिर में आल पंजाब क्विज़, नात और तकरीरी मुकाबला जीतने वाले तलबा तलबात को मुबारकबाद पेश करता हूँ।
मैं समझता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम सब अपनी ज़िंदगी को अस्वा हुस्ना के मुताबिक ढाल लें। यही आखिरत और दुनिया में कामयाबी का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तलबा में तक़सीम इनामात की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप देने के लिए 25 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा नादार तलबा की तालीमी मुआवनत के लिए भी 25 करोड़ रुपये रखे गए हैं। आपको बताएं कि सरकारी सतह पर हफ्ता रहमतुल आलमीन मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर तकरीब का इनेकाद भी किया जा रहा है। और शेख रशीद ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि वोट को इज्जत दो लेकिन वोटर को कोरोना से मरने दो। ये है दोहरा मयार। शेख रशीद की जानिब से कहा गया कि कोरोना से मुल्क की बुनियादें हिल जाएं लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी औलादें और रिश्तेदार मुल्क से बाहर हैं। शेख रशीद की जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि गरीब का बच्चा कुर्बानी के लिए इन्हें दरकार है। शेख रशीद ने अपोजिशन पर शदीद तनकीद की है और कहा है कि वोट को इज्जत दो लेकिन वोटर को कोरोना से मरने दो। ये है दोहरा मयार। जबकि शिबली फराज कहते हैं कि अपोजिशन गैर जिम्मेदारी का सबूत देने पर तुली हुई है। जलसों पर बज़िद होना गैर जमहूरी सोच की अक्कास। अदालती और हुकूमती अहकामात के बाद जलसे मुनक्किद करने का कोई कानूनी और इखलाकी जवाज़ नहीं है। शिबली फराज ने यह वार्निंग भी दी कि खैबर पख्तूनख्वा में केसेस बढ़े तो अपोजिशन रहनुमाओं पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ज़ाती मफाद के लिए आवाम की सेहत और जिंदगियों से खेलना खुद गर्जी है जिसका मुजाहिरा अपोजिशन पार्टीज कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन गैर जिम्मेदारी का सबूत देने पर तुली हुई है। जलसों पर बज़िद होना गैर जमहूरी सोच है। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि कोरोना पर नून लीग और पीपल्स पार्टी दोगलेपन का मुजाहरा कर रही है। वफाकी वजीर असद उमर ने अपोजिशन पर कड़ी तनकीद की है। उनका कहना है कि नून लीग की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर और पीपल्स पार्टी ने कराची में लॉकडाउन किया। दोनों जमातों का फिर भी इसरार है कि पेशावर जलसा जरूर होगा। दोगलेपन की इससे वाज़ेह मिसाल नहीं मिल सकती। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि बख्तावर की मंगनी पर कोरोना टेस्ट लाजिम किया गया लेकिन लोगों को जलसे में बुलाकर उनकी जान खतरे में डाली जा रही है। शहबाज गिल ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि बख्तावर की मंगनी पर कोरोना टेस्ट लाजिम करार दिया गया वरना मेहमान को बिलावल हाउस आने की इजाज़त नहीं होगी। इन्हें अपनी जानें तो बहुत अजीज़ हैं लेकिन खल्क़े खुदा को जलसों में बुलाते हैं। ये आवाम की जानों का ख्याल क्यों नहीं रखते? ये फिरऔनियत और जालिमाना सोच है। ये लोग आवाम को कमतर समझते हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि अपोजिशन का रवैया ख़तरनाक है। लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलना मजाक नहीं। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि पेशावर से मुल्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग हशर बपा करेंगे तो अपोजिशन जो कि बज़िद है कल पेशावर में जलसा करने पर इसी पर वफाकी वज़रा की जानिब से रद्द अमल सामने आ रहा है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि अपोजिशन का ये रवैया ख़तरनाक है।